Namaste everybody, Jai Hind, Jai Bharat. My name is Lakshika Patyal and I'm a 6 times recommended candidate, 4 times from Indian Army and twice from Indian Air Force. I've given 6 attempts in total and I've got 6 recommendations. So welcome you all to this SSB Mantra YouTube channel. And if you really like our content on Instagram, like we keep posting there, me and Bhavna, so please do like, subscribe and share this YouTube channel as well. Give that love that you have given us as a on Instagram. And I'm here today because I want to share very good news with you people that the next 45 or 30 minutes that you're going to watch on this YouTube channel is an interview that is conducted of one of our candidate who is twice recommended. So it is has been she had an incredible journey where you'll get to know some insights about how did she prepare and what setbacks she had, and you know eye-opening insights on psychology, GTO and interview part. So stay tuned till the end of the video, and thank you for all the support, and I hope that this video will add value to your preparations candidates. It will definitely add, so do look at the video complete till the end. Thank you so much. Okay, hi Shalu, Hello, ma'am. how are you? Totally fine. How are you, ma'am? I'm also extremely good, and इससे ज़्यादा extremely इसलिए good हूँ because I'm here to interview you and you are one of our star candidates who have made it through the merit. लड़कियों की जंग सबसे बड़ी merit है. So we are really proud of you, me and Bhavna both, and it just feels serene to be here with you and talking to you now. Just tell me about Shalu, how it all began. Like, from where did you got this motivation to be part of the Indian Defense Forces? Thank you for the introduction, ma'am, and thank you for having me here. With which, ma'am, talking about from where it all began. Eventually, I was a tech head. I have never thought of coming to defense, but thanks to my brother, he himself was an ND aspirant. So he was preparing, but because of some reasons, he couldn't make it to the NDA and he couldn't join forces. But he gave me the motivation. He gifted me that book of SSB preparation that every aspirant have on my birthday in 2021. And I didn't touch that book for 1 year because I was just giving myself an excuse कि अभी तो college चल रहा है, मैं बाद में देख लूँगी. And that's how it started. देखते देखते 1 साल बीत गया and literally उस book पे ना एक धूल की परत आ गई थी. And then suddenly my last semester came. So I was like, चलो इसको उठा के देखते हैं. When my brother is saying that you are doing good in engineering, so let's have a look. है क्या ये चीज़? And then there I just took that book. I started searching on YouTube. I started reading a lot from Quora and different places. And then one certain day I came through that video of Bhavna ma'am. उन्होंने कुछ explanation वाली video डाल रखी थी. And I was like, this seems genuine. Let's go and talk to her. And literally my first message to Bhavna ma'am was, ma'am मुझे ना idea है कि SSB होता क्या है, मैंने बहुत पढ़ लिया, लेकिन आप मुझे सच्चा वाला फीडबैक दे देना. जस्ट गिव मी अ ट्रू फीडबैक बिकॉज आई हैव नो वन हु कैन जस्ट टेल मी दैट व्हाट्सएवर आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग. तो मैम मुझे प्लीज़ आप अच्छा वाला फीडबैक देना, चाहे कितना बुरा ही क्यों ना हो, बस आप मुझे बता देना मैं क्या गलत और क्या सही कर रही हूँ. एंड देन शी वाज लाइक, अरे जस्ट कम टू अस, वी विल सी दैट व्हाट यू आर डूइंग. एंड दैट्स हाउ इट बिगेन. ओके सो शालू, क्या डेट थी वो जब तुमने एसएसबी मंत्रा ज्वाइन किया? Ma'am, I was enrolled in April batch, April 2023 batch. Awesome, awesome. And Aditya was with you in that batch? Aditya was enrolled a few batches before mine, but yes, we met in the WhatsApp group that we have. So we started preparing together, and it feels amazing that both of us are joining different academies within like 20 days apart from each other's joining, with which ma'am our joining was like 1-2 हफ्ते की दूरी में हम दोनों की आई है recommendation. And literally in his recommendation I was at the 9th cloud. मैं ऐसे उछल कूद रही थी जैसे मैं फिर से recommend हो गई, because we haven't saw each other's journey so closely. We haven't practiced together. एक दूसरे का इंटरव्यू लेना, एक दूसरे को डांटना, समझाना, एक दूसरे को साइक में रिव्यू देना कि lack of imagination. So it was all like that.
Okay. Now, Shalu, can you tell me about your first recommendation and what were the results? What happened in that? Ma'am, I still remember my first recommendation happened on 12th of May. So it was just after our sessions got over. मुश्किल से 2 या 3 दिन खत्म ही नहीं, इंटरव्यूज चल रहे थे हमारे, जो मॉक इंटरव्यूज चलते हैं. सो दोज गॉट लाइक सब कुछ हो गया, मॉक इंटरव्यूज हो गए एंड आई वॉज ट्रैवलिंग एंड भावना मैम वॉज गिविंग मी फीडबैक ऑन फोन कि शालू तुझे आता तो है लेकिन तू बहुत नेगेटिव जा रही है, पता नहीं व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, दैट तेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा नेगेटिव जा रहा है. माइट बी इस टाइम नहीं होगा, जस्ट गो हैव एन एक्सपीरियंस एंड जस्ट बी योर सेल्फ. खुश रह, तू बहुत खुश लड़की है, जस्ट खुश रह और जैसी है वैसी रहना. सो आई वेंट देयर, आई वॉज लाइक ठीक है, मैम ने बोला है कि नहीं होगा, कोई नहीं, ट्राई तो कर सकते हैं. दिमाग में ये था कि जो कर रही हूँ उस टाइम उसमें बेस्ट करना है और जैसी हूँ वैसी रहना है. सब कुछ इतने प्यार से होता गया. गलतियाँ की, बहुत गलतियाँ की, वो बाद में समझ आया. उस टाइम तो लग रहा था कि सब आसान है, आसानी से हो रहा है. एंड कमिंग फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि प्लस साइन का मतलब क्या होता है. मैम, दिस वॉज अ वेरी फन इंसिडेंट दैट हैपेंड विथ मी, दैट 2 of the अमास गर्ल्स वर देयर विथ मी. सो एक आगे खड़ी थी लाइन में और एक पीछे मेरे डॉक्यूमेंटेशन के टाइम, एंड देन आई मेट पॉलोमी. So she was my bar friend. She was carrying my documents and I was so like chaotic situation it was, and she was helping me with everything. So they told me, look at that girl who is coming. Uska plus sign hai. She is recommended. And I was like, कैसे पता चला that she is recommended? Then she told me कि वो जो plus होता है ना, वो recommended वालों को मिलता है. So I was this noob that I didn't knew that recommended candidates get a plus sign. And then I was like, यार मुझे भी चाहिए. And then इट स्टार्टेड. सारा SSB प्रोसेस बहुत प्यार से हो गया. भोपाल इज़ अ लवली बोर्ड. मार्क्स नहीं देता लेकिन इट इज़ अ लवली बोर्ड बिकॉज मेरा पहला रिकमेंडेशन वहाँ से था. सो सब कुछ बहुत आसानी से हुआ. GTO ग्राउंड इज़, अगर भोपाल का क्लियर किया है ना तो कहीं का भी कर लोगे. सो सब वैसे आराम से हो गया. एंड देन द रिकमेंडेशन हैपेंड. उससे पहले जब स्क्रीनिंग हुआ तो मैंने मैम को फ़ोन करके बताया, मैम मैंने ऐसी स्टोरी लिखी है, और मैंने लिखा था कि उसमें थोड़ा टेंस थी मैं, इसलिए मुझे वेकेशन पे जाना था. सो मैम वाज लाइक, तूने टेंस थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, बाकी इट इज़ अ नाइस स्टोरी. एंड आई वाज लाइक ठीक है, अब इतने हाइपर वाले शब्द यूज़ नहीं करने. एंड देन आई वाज लाइक चलो धीरे धीरे आई गॉट स्क्रीन इन, साइक हो गया, GTO हो गया, इंटरव्यू हो गया. एंड आई वॉज दी हैप्पीएस्ट व्हेन इंटरव्यू गॉट ओवर. इंटरव्यू की भी बहुत प्यारी कहानी है, आपको ज़रूर बताऊंगी. एंड देन व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड, भावना मैम वाज लाइक, ये तो एक शॉकिंग रिकमेंडेशन था बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिकमेंडेशन बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस दैट आई वॉज गिविंग इन दी सेशंस हमारे SSB मंत्रा वाले पे. बट ठीक है, दैट वॉज माई लक ऑल्सो समवेयर. बट लक नहीं, लेकिन थोड़ी मेहनत और लक और आप लोगों का आशीर्वाद था. रेस्ट, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी. एंड देन आई केम बैक. काफ़ी गलतियाँ भी की. गलतियाँ ये करी कि पहले रिकमेंडेशन के बाद सब छोड़ दिया कि अब तो मैं महारानी हूँ, आई एम गोइंग टू बी एन ऑफिसर. मुझे नहीं पता था मेरिट आउट जैसी चीज़ होती है. आई लेफ्ट कमिंग टू सेशंस एंड देन सडनली मेरिट आउट हैपेंड. एंड वो एक अलग एक्सपीरियंस था. दैट टोल्ड मी दैट, एंड दिस वॉज द मोटिवेशन फॉर मी, दैट नथिंग लाइफ चेंजिंग कम्स सो ईजी इन लाइफ. बस ये एक शब्द अपने दिमाग, मतलब ये एक कोट अपने दिमाग में ना घुसा दिया था कि शालू इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी. बिकॉज गर्ल्स का कॉम्पिटिशन इज देयर. इवन दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन SSC IT पीपल गॉट मेरिट आउट. तब तक आई वॉज enjoying when I got my appointment letter. But the moment I saw the WhatsApp group and people started texting कि हमारा नहीं आया, वो मुझे ज़्यादा डरा गया कि शिट वहाँ मैं भी हो सकती थी. एंड वो डर एक बार देखने के बाद, हैट्स ऑफ टू यू एंड भावना मैम, जिन्होंने कितनी बार वो देखा एंड स्टिल यू गाइज आर हियर एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडीज. सो दिस इज माई मोटिवेशन. आप दोनों मेरे मोटिवेशन हो. और मेरा खुद का जर्नी इतना अप्स एंड डाउन, ज़्यादा डाउन नहीं गया. आई वॉज ब्लेस्ड. भावना मैम डू से मी दैट यू आर अ ब्लेस्ड किड. मैं मानती हूँ आई एम अ ब्लेस्ड किड बिकॉज आई हैव गॉट सच लवली पीपल लाइक यू आर देयर. आपकी डांट फटकार मेरे सेकेंड अटेम्प्ट से पहले बहुत प्यारी थी. यार शालू, मेरे को अच्छे से याद है, भावना वाज टेलिंग मी दैट शालू इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट. वो एक बार रिकमेंड हो गई है, बट हाँ उसका स्कोर कम रहा है इसलिए मेरिट आउट हुई है. अब वो स्कोर कम इसलिए रहा बिकॉज परफॉर्मेंस वीक थी. फर्स्ट अटेम्प्ट में तो होता ही है
कि परफॉर्मेंस का हम एनालाइज ही नहीं कर पाते. एंड यू गॉट मेरिट इन द सेकंड टाइम शालू, ओनली बिकॉज यू हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन योर वीक पॉइंट्स. एंड जो मैं डांटा तुम्हें वो काम कर गया तुम्हारे फेवर में. यू अंडरस्टूड वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट यू करेक्टेड, अल्टीमेटली स्कोर तो बढ़ना ही है. एंड यू परफॉर्म्ड इक्वली वेल इन एवरी टास्क that resulted a meriting. So kudos to you, Shalu, that you were able to recognize your mistakes even though you are recommended. बहुत कम लोग हैं जो ये बात को acknowledge करते हैं कि yes, we are recommended and we can still commit mistakes and increase our score by improvising on that. So yes, Shalu, that's needed, and that's why you are now going to the Indian level and handling. So this is a beautiful journey that you have shared with us, Shalu. Now I would like to ask you a few questions as to, for our candidates, for our audience, like I would like to know key pointers to be kept in mind, like for the psychology test, for the GTO, for the interview. Just a few pointers that could help these kind candidates here who are looking at us, who are listening to this, video. So please, Shalu, can you throw some light you learned through us, or through SSB Mantra, or through other people? What is that? Definitely, ma'am. When we are talking about सबसे पहला step is screening. OIR is important, but the most important according to me is your story, and as they say that it is the test of your perception. So perceive that picture right. Might be आप नरेशन में 100% नहीं दे रहे हो, लेकिन अगर उन्हें आपका आइडिया समझ आ गया तो I have saw people getting screen in. So they just want you to perceive the picture right. People do go to like बहुत ज़्यादा problematic situation. क्यों जाना है, बट हाँ, हम जो देखते हैं हम वो लिखते हैं, वो आप एक्सपीरियंस करोगे. जैसे द मोर यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, द मोर यू विल फील लाइक कि हम सच में हमारी सराउंडिंग की स्टोरीज लिखते हैं. देन इफ यू हैव इट परसीव द पिक्चर राइट, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग स्क्रीनिंग. ये चीज़ मैं लिख कर दे सकती हूँ. आई कैन लिटरली राइट दिस आउट दैट इफ यू हैव इट परसीव द पिक्चर राइट, यू विल गेट स्क्रीन इन. अदर देन दैट, टॉकिंग अबाउट साइक टेस्ट इज ऑल अबाउट योर लाइफ, your parents life, your siblings life, your friends life, because आप एक स्टोरी अपनी लिख सकते हो, आप 2 स्टोरी अपनी लिख सकते हो, तीसरी स्टोरी, चौथी स्टोरी आप परसीव, मतलब you can't pretend to be someone else in wholesome of 11 pictures that you are going to see there. So then you can relate it to your parents, you can relate it to your grandparents, क्योंकि old age की भी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं. कई बार हम वैसा सोच नहीं सकते, लेकिन हमने ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर देखी है जहाँ शायद हमारे बड़े पापा या हमारी दादी या हमारे दादा या नाना नानी, हमने कभी उन्हें तो वहाँ देखा होगा. सो जस्ट रिलेट इट टू देम एंड राइट दी स्टोरी. दे आर जस्ट लुकिंग फॉर सम ओरिजिनल स्टोरीज. ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैम? बिकॉज बिफोर माई सेकेंड अटेम्प्ट आई हैव लिटरली रिटन 200+ स्टोरीज. आई हैव इट प्रैक्टिस्ड इतना ज़्यादा कि लग रहा था कि शायद ओवर प्रैक्टिस की वजह से मैंने हट जाना है इस बार. तो वो चीज़ भी नहीं करनी है, लेकिन हाँ, हर जगह यू विल सी रिपीटेड स्टोरीज. आइडियाज़ हर जगह सेम है, लेकिन आपका पर्सनल टच तब आएगा जब वो स्टोरी आपकी होगी. द साइकोलॉजिस्ट नीड्स टू रिमेंबर कि यार चेस्ट नंबर 17 की ना ये वाली स्टोरी थी, और उससे ना उसकी ये वाली पर्सनैलिटी झलक रही है, जो कि उसकी GTO में चेक होगी. आई हैव इट ऑलवेज बीन एन एक्टिव स्टूडेंट इन माई कॉलेज. मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी. आई यूज टू डू एंकरिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरी इवेंट ऑफ माई कॉलेज. मैं बहुत बबली हूँ, आई एम वेरी बबली. सो वो चीज़ मेरी स्टोरीज में भी आती है, बिकॉज मेरी ज़्यादातर जाती थी कि टेक के सेशंस करा रही हूँ, एज आई एम अ टेक मेंटोर. सो मैं टेक के सेशंस कराती थी, मैं कम्युनिटी बिल्ड कराती थी, मैं लोगों को अवेयर ज़्यादा कराती थी, क्योंकि वो मेरी पर्सनल लाइफ है. माई फादर एंड माई मदर आर इन टू टीचिंग प्रोफेशन, तो मैं वो चीज़ें भी डालती थी. या मैं SSB मंत्रा के आफ्टर सेशंस हम साथ में करते हैं, तो सबकी एक्सपीरियंसेस, किसी की बहुत प्यारी स्टोरी सुन ली. As I remember one of the girl who was in my batch, I was literally expecting कि वो recommend होगी, and she will definitely make it very soon. I loved her woman empowerment की stories because she was pursuing some BSc degree in that specific domain. So she used to write such beautiful stories कि वो ना सुनने में ही मज़ा आ जाता था. So I used to just recall her stories if I have saw some photos regarding 2 women talking or anything regarding that. So just keep a positive perspective towards every picture and you will be able to crack those pictures very easily. कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं डालना है. ये तो मेरी फेवरेट स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले अटेम्प्ट में किया है. फालतू की प्रॉब्लम्स डाल के फिर उसको सॉल्व नहीं करना है. रादर देन गो फॉर टेक अ एम एंड अचीव दैट स्पेसिफिक एम. हम फिर अचीवर लगेंगे ना.
क्यों हम किसी Yes. प्रॉब्लम को सॉल्व करें? हम एक एम वाले इंसान हो सकते हैं कि हमारे पास एक गोल है, हमें वो गोल को अचीव करना है. So we will have a positive perspective towards that specific thing, and then psych test will be very easy thing. Other than that, SRT, keep it very crisp. मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखे, मैंने बहुत इधर उधर से पढ़ा, एंड देन आई केम टू नो कि सब कुछ सेम ही आता है, बस पैटर्न अलग होगा. द प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज रिमेन सेम. जस्ट राइट द क्रिस्प सोल्यूशन टू इट. वैट में they don't want your opinion, but they want your views, that what you think and how are you relating that word to the current situation. If you are keeping it like, if you are just sharing your mindset about that specific word, you will just crack it very easily. और वैट तो बहुत आसानी से हो जाता है, बस हर जगह ना अपने दिमाग को काम रखना है. ये चीज़ मैंने शायद मेरे पहले अटेम्प्ट में नहीं करी थी, दूसरे में करी है, कि हर जगह हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है. हम बहुत अगर आराम से सोचेंगे तो बहुत प्यारे सोल्यूशंस आएंगे. लेकिन हाँ, लोग ना रटने बैठ जाते हैं. दैट इवन आई हैड ट्राइड. मेरिट आउट के बाद मैंने भी सोचा था कि मैं परफेक्ट बनूंगी, लेकिन दे आर नॉट लुकिंग फॉर परफेक्ट पीपल. दे आर लुकिंग फॉर समवन लाइक अस, जिनको वो मोल्ड कर सकें और जिनको वो अपने तरीके से ढाल सकें. और हम इतने तो अच्छे हैं कि वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे. एवरी पर्सन इज अ नाइस पर्सन, बट इट्स जस्ट दैट कुछ लोग दिखा पाते हैं, कुछ नहीं दिखा पाते. तो हमें बस अपना वो क्वालिटी उस दिन शो कर देना है जिस दिन वो चाहते हैं कि हम उन्हें दिखाएं. एंड देन SRT इज डन. SD तो इट्स लाइक एन आउट क्वेश्चन. हमें पता होता है कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, हमें लिखने हैं ऐसे. अदर देन दैट GTO इज मोर ऑफ लाइक you need to be a leader, undefined leader. If the people are not letting you be a leader, trust me, in my second attempt I had faced that stuff, that people were not letting me speak. But at the end, agar you are calm, you are composed, you have valid points, the GTO will listen to you. My experience in Vizag was, mera GTO was sitting just behind me. The moment I said a word, like a statement I said, and that was, I got the topic of artificial intelligence, and I love technical things. The moment I said my 2 of points, he left his chair from my back and he came and sat in front of me. And that was the moment when I understood that he wants to listen to me more. But उस टाइम ये भी नहीं था कि क्रेजी हो जाना है, मतलब बिल्कुल हड़बड़ी में बोल देना है कि नहीं अब तो ये मुझे सुनने आए हैं, अब मुझे और बोलना है. नहीं, लेट्स नेवर लूज योर काम, जस्ट बी काम. एंड आई वॉज लाइक ठीक है, जब मेरे को मौका मिलेगा मैं बोलूँगी. मुझे बहुत बार काटा गया एंड आई वॉज लाइक ठीक है, 1 बार शांत हो गई, 2 बार शांत हो गई, 3 बार शांत हो गई. बट देन आई रियलाइज कि यार ये टॉपिक मेरा है. I have to say things because I know more than these people. So I was like, please let me speak. I literally looked at my this side and I was like, please let me finish. Please let me speak. I was not rude to them, but yes, I do stand for myself. और वो चीज़ दिखानी पड़ेगी. लड़ना नहीं है, लेकिन अपने आप को दबने भी नहीं देना. And then GTO is your thing. GTO is something that you will enjoy the most. So that's all, ma'am. 2-day fun day. So true. बिल्कुल फंडे होता है GTO. Rightly said, Chalu. All the points, see whatever she's telling or explaining, it's something that is fundamental to crack SSB. If you're not a person like this, try to be one. And Chalu, what I believe is that every officer equality can be inculcated. Every single. I believe that. It's mere practice. It's mere your अवेयरनेस ऑफ योर कॉन्शियस. आप क्या हो. बहुत लोग बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्या चीज है ये. खुद को जानना कि मैं कितने पानी में हूँ, क्या मैं दूसरों की मदद करती हूँ, क्या मैं ग्रेटफुल हूँ, क्या मुझ में सीखने की इच्छा है. सबसे बड़ी बात शालू में सीखने की इच्छा. मैंने इतना डांटा है. शी वाज गोइंग फॉर शालू SSB के लिए जा रही थी तुम सेकंड. यस मैम. एंड आई वाज लाइक ऐसी स्टोरी बनाओगी तुम, इससे रिकमेंडेशन आएगा, क्या लिखा है ये. आई थिंक दिस इज व्हाट आई सेड. यस मैम. इससे एंड शी रियलाइज्ड मे बी दैट फैक्टर ट्रिगर्ड हर कि नहीं है तो कुछ करना पड़ेगा वहां SSB में जाकर. एंड शी डिड नॉट गिव इन टू द प्रेशर दैट आई गेव हर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई नो वो SSB के लिए जा रही है. इट वर्कड इन हर फेवर. So you have to understand everybody that what are the triggers, what are your pressures.
under which you can work, and it's very important for any SSB aspirant या जिसको फौज में जाना है, प्रेशर में काम करना सही तरीके से, and you will get through, right Shalu? Definitely, ma'am, and you use the word self-introspection. I guess that word is a life-changing word. मैम मेरिट आउट होने के बाद ना बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि गलत क्या किया था, बिकॉज सब कुछ तो सही था, शायद तभी रिकमेंड हुई. बट देन आई वॉज लाइक, अगर मैं परफेक्ट होती तो मैं मेरिट इन होती, कुछ तो गलत वहाँ भी किया मैंने. एंड दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग द कॉन्फिडेंस आउट पीपल सो मोर. वाई? बिकॉज मैम मैंने तो चलो एक सक्सेस देखा, उसके बाद मैं निकली, लेकिन कॉन्फिडेंस आउट पीपल आर लाइक, उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं देखा, लोगों के ताने भी जरूर सुने. बिकॉज मी बीइंग अ मेरिट आउट कमिंग फ्रॉम अ सिविलियन फैमिली itself was a very tough challenge to make everyone understand that merit out is also a thing. Other than that, talking about confidence out people, it was like कि उन्होंने तो recommendation भी नहीं देखा और फिर से वो journey start करनी है. That is like coming against a failure. It's a toughest task. मैं merit out होने के बाद I was like I won't give any other chance, and then I was like नहीं होगा मेरे से, छोड़ देती हूँ मैं. The next day I was in Karol Bagh in some IS academy, was thinking of getting myself enrolled. But then I went there, I saw the rush there, and then I thought ki, then that specific statement came to my head that Shalu, nothing life changing will come in just one attempt. IS के भी इतने attempts देते हैं, and दोनों की equivalent ranks हैं, and nothing will so easily be available for you. आप इतने भी अच्छे नहीं हो. Then I was like, rather than changing a path, why not let's start again, zero से शुरू करते हैं. And as the 12th fail picture is there, that let's restart. वो शायद अगस्त के महीने में मैंने शुरू किया, let's restart. I was like, हर एक चीज़ को बारीकी से समझा, भावना मैम से फ़ोन पे बात करी, उन्हें हर एक चीज़ बताया, फिर खुद अकेले बैठ के बहुत दिन, लाइक 1-2 हफ्ता मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया है कि शालू ये किया, लेकिन ये ऐसे नहीं करना था, ये शायद इस तरीके से होता. और तब मुझे समझ आया कि मेरी पहली अटेम्प्ट की रिकमेंडेशन पता नहीं कैसे आई थी. मतलब दे हैवंट सॉ माई मिस्टेक्स, बट पहले अटेम्प्ट में ना आपको इनोसेंस, आपकी सच्चाई, आपका स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है. वही दूसरे अटेम्प्ट में ये सारी चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती जितनी परफेक्शन रखती हैं, क्योंकि तब दे कांट एक्सपेक्ट यू टू डू सम मिस्टेक बिकॉज दे नो दैट आपने एक्सपीरियंस कर रखा है. सो आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग, एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, GTO भी इतना कुछ खास नहीं गया था, इंटरव्यू अच्छा गया था, साइक तो मैंने बहुत ही गड़बड़ किया था. एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. हर दिन 4 स्टोरीज, हर दिन 20 शब्द, हर दिन 30 SRTs. इतना वॉज माई डेली रूटीन. नॉट जस्ट दैट, स्टार्टेड रनिंग बिकॉज पहली बार मुझे TR मिला था. I was overweight, almost 12 kgs overweight. But उस टाइम एक जुनून था कि उस overweight को 28 दिन में क्लियर किया. If I say this in front of someone, they do ask me कैसे कर लिया, कैसे हो गया, and I was like पता नहीं, उस टाइम अलग ही जुनून था कि बस जाना है, इतनी पास आके नहीं रुकना. वही चीज़ फिर दूसरे टाइम में सब कुछ किया, सब कुछ बिल्कुल वैसे किया जैसे होना चाहिए. फिर जब हम रिकमेंड हो गई तो रिकमेंडेड वालों के साथ बैठे, एंड वी ऑल वर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, कोई कहीं से कोई कहीं से. हमने जब बातें करी तो सबका समझ आया कि सबकी आइडियोलॉजी, सबका स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सेम, और वही एक सेम आइडिया जिसका होता है, जिसका वो सेम माइंडसेट है, वो रिकमेंड हो जाते हैं. बस येस, इट वॉज लाइक कि पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड होने के बाद आई वॉज लाइक हु आई गॉट रिकमेंडेड. दूसरे में रिकमेंड होने के बाद आई वॉज लाइक मम्मी मैं रिकमेंड हो गई हूँ, बट अब ना किसी को बताना नहीं है, बाद में देखेंगे जब मेरिट आ जाएगी. बिकॉज मैम पहली के बाद तो नहीं पता था कि क्या होता है, बिकॉज आई वॉज टू बी लाइक द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम माई फैमिली. आई वॉज लाइक ऑफिसर बन गई मम्मी मैं तो. बट फिर मेरिट आउट हुआ तो आई वॉज लाइक नहीं, रियलिटी चेक इतनी आसानी से नहीं बनते. एंड देन दिस टाइम आई वॉज लाइक मम्मी हो गई मैं रिकमेंड, बट हाँ अभी किसी को बताना नहीं, अभी मेडिकल्स हो जाए फिर हम देखेंगे, आगे मेरिट आ जाएगा फिर देखेंगे. एंड दिस कोर्स गॉट सो डिलेड कि बस जान गले तक अटकी पड़ी थी कि व्हेन दिस मेरिट विल कम. एंड देन वन सडन डेट केम एंड इट वाज लाइक कॉलिंग माई डैड, एंड लिटरली when the appointment letter was there in my hand, I was talking to Bhavna ma'am. I was literally in tears. I was like ma'am aa gaya. And it still feels so unreal that I have to go to the academy now and the packing is almost done. But it's all because of you all.
And yes, Yes. I'll always be grateful. You should be. Gratefulness से तो है जो है. And let me tell you, Shalu, that when you are saying all these things, it has taken me back to my days of recommendations. And same I used to say to my parents that, ha, I got recommended. And let me tell you, everybody who's ever listening here, that recommendation लेना आसान नहीं है, खासकर जब आप recommended हो already. Because every time they're asking something better from you, something much more, what improvement, what growth, everything. So हाँ, like Shalu has prepared every time, like 2 SSBs, 2 recommendations. I have 6 SSBs, 6 recommendations. मैंने हर बार जान लगाई है जान, खून भी बहा है और पसीना तो बहा ही है. And every recommendation has never been a luck for me. It has always been my hard work. एंड इसका यही प्रूफ है कि आज तक हम रुके नहीं, क्योंकि रुकने का मतलब नहीं, एक फौजी रुकता नहीं है. मैं भले ही फौज ज्वाइन कर पाई हूँ अभी तक, बट डेफिनेटली अंदर से फौजी हूँ और चलती रहूंगी. ये मेरा एक मोटो रहता है. और मैं अपने कैंडिडेट्स को, मैं और भावना सेम बात बोलते हैं. शालू को भी हमने एक ही बात बोली, भाई रुकना नहीं है. तुम्हारे कैंडिडेट को ये बोलते हैं, अभी भी शालू रुकेगी नहीं. नाउ वी एक्सपेक्टिंग कि शी गो टू द ट्रेनिंग एंड शी नेल इट देयर. Shalu, we want you to be the best version of yourself now. वहाँ जाओ and just be the best. The best. There is nothing lesser than that. And I believe you will do that. So, एक और question मैं पूछूंगी तुमसे कि please my candidates conference out होते हैं, screen out होते हैं. They have some lowest point. So what was your lowest point, Shalu, and how did you get through that point? Specifically being merit out. And for some other point you would like to share about your life, please throw some light on that for our candidate to motivate them कि देखो हार नहीं माननी. मैम, एज आई हैव सेड दैट आई एम वेरी बबली. तो मैं भोपाल में थी, मैंने अपना मेडिकल्स एक्सटेंड करा लिया था. सो आई मेट ऑलमोस्ट एवरीवन हु वाज रिकमेंडेड फ्रॉम एसएससी टेक, boys and girls. So I have made so many friends, and definitely boys are literally great friends. So all of them got merited. And I was literally sharing it on my Instagram stories that yippee, boys did it. But at the end, I didn't make it. So I was like, ठीक है, अभी उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है. I was just escaping myself from that situation. But I still remember 11th August, almost like it was the next day, 12th August, 3 a.m. in the morning. I was sitting here in my room. I was crying out loud because I can't cry in front of others or in front of my family because it will be like, यार कमज़ोर हो गई, हार गई. फैमिली को पता चला कि यार ये बहुत सैड है, एंड दे वर लाइक, शालू यू आर डूइंग ग्रेट इन कॉर्पोरेट, छोड़ दे, हम वैसे भी नहीं है ऑफिसर्स, हमारा खानदान वैसे भी ऑफिसर्स वाला नहीं है, वी आर ग्रेट इन व्हाटएवर वी आर डूइंग, सो यू आर डूइंग इट ग्रेट आउटसाइड, सो लीव इट. इसमें दिल टूट रहा है, तू उदास हो रही है, एंड वी कैंट सी यू लाइक दिस. इट बेटर डू टेक ऑल दी ऑफर्स दैट यू हैव एंड जस्ट जॉइन अ नाइस कॉर्पोरेट कंपनी. आई वॉज लाइक ठीक है. दिमाग में वो भी चल रहा था, दिमाग में भी चल रहा था कि चलो दूसरा ही कर लेते हैं. IAS वॉज ऑलवेज माई ड्रीम, सो वाई नॉट लेट्स गो टू द अकेडमी एंड लेट्स जॉइन सम कोचिंग क्लास एंड जस्ट गिव 2 years टू दैट एंड आई विल मेक इट. आई हैड दैट कॉन्फिडेंस. तो मैंने सब सोच लिया. फिर वही है कि जब वापस आ रही थी मेट्रो में, वो जो मेरा 1.5-2 घंटा था, आई वॉज लाइक, माई पापा यूज टू से दिस कि गिरेंगे इंसान, लेकिन उठना जानना इज मोर इम्पॉर्टेंट. और अगर उस गिरने के डर से तुम चलना छोड़ दोगी तो तुम किस बात की इंसान. तब तो जानवर की लाइफ इज बेटर, हु इज हैप्पी विथ एवरीथिंग दैट दे हैव. बट इफ यू आर ब्लेस्ड टू बी दिस इन दिस लाइफ, देन टेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. तुम्हारे पास कोई रिसोर्स है, तुम उसको इस्तेमाल करो. तो आई वॉज लाइक ठीक है. माई फादर ऑलवेज यूज टू से मी कि you can do everything whatsoever you can think of, but kabhi harna mat. And I was like he is someone who is always being mentioned in my interview, because मुझसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था भोपाल में कि why is this your first attempt, because I was 21 then and I have recently turned 22. So they were like, why is this your first attempt, why not FCAT or anything else? So I was like, sir, my father used to say, and this is a true fact, पापा बोलते हैं कि एक समय पे ना 2 नाव पे पैर नहीं रखने चाहिए, बीच में गिर जाएगी. सो इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, डू योर ग्रेजुएशन विथ ग्रेट मार्क्स. वंस यू आर डन विद इट, गो टूवर्ड्स द अदर स्टेप ऑफ योर लाइफ.
तो वही चीज़ थी, पापा इज माई आइडल, सो आई वॉज लाइक ठीक है पापा बोलते हैं, एंड ही वॉज लाइक देख, even if you are not earning, or even if you are earning, whatever you are earning, you are doing it for yourself. But even if you won't earn it, मैं हूँ तुझे पालने के लिए, तुझे जो करना है, जितना टाइम लेना है कर. And truly I'm blessed to have the bestest parents. It takes a lot to send a girl in the forces, especially coming from a state like Bihar where the discrimination is still so much, and my parents have done so much. So his words were there in my mind when I was coming back from Karol Bagh in that metro. He was like कि लाइफ में ना कुछ भी इतनी जल्दी नहीं आएगा, और अगर कुछ जल्दी आएगा तो वो टेम्पररी होगा, कुछ बहुत लॉन्ग टर्म बहुत मेहनत से आता है शालू, इतनी आसानी से तो तू वैल्यू भी नहीं करेगी. विथ विच पहली अटेम्प्ट के बाद शायद मैं बहुत आसमान में उड़ गई थी. मैंने सब छोड़ दिया था, मैं प्रिपेयर नहीं कर रही थी आगे के अटेम्प्ट्स के लिए. मैं बहुत ऐसे हो गई थी कि अब तो मैं ऑफिसर बन गई. बट देन यू रियलाइज कि ये सारी गलतियाँ थी आपकी. एंड देन आई डू रिमेंबर माई मम्स वर्ड. शी इज़ लाइक हमेशा ना लदा हुआ पेड़ शालू बहुत झुका होता है. यू नीड टू स्टे हम्बल एंड ग्राउंडेड नो मैटर एट वॉट रैंक यू बी. अगर आपने अच्छाई छोड़ दी तो अच्छा समय और अच्छे लोग आपको छोड़ देंगे. सो जस्ट बी दैट, बी हेल्पफुल, डू एज मच एज यू कैन डू इट फॉर अदर्स. एंड दैट इज़ द रीज़न मैं SSB मंत्रा अभी भी आती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक ये पूरी फैमिली मेरी है. आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफिसर्स फ्रॉम हियर, एंड दैट्स ऑल मैम. बस ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं. बहुत लोगों ने बोला कि छोड़ दो, बट माई मम एंड फादर वॉज लाइक जैसे जाना है, जहाँ जाना है, जितना जाना है तू जा, किसी चीज़ की टेंशन मत ले. एंड देन उस समय ना एक बस प्रॉमिस किया था मैंने अपने पापा से. आई स्टिल रिमेंबर that was the month of August that I promised my father, that too on 15th of August, कि पापा अगर एक साल बाद मैं किसी एकेडमी में नहीं गई ना, आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं सब करूँगी, लेकिन मुझे बस अप्रैल से अप्रैल का साल चाहिए, क्योंकि मैंने अप्रैल में शुरू किया था, मैं अप्रैल में ही ख़त्म करूँगी. एंड लिटरली द 22nd of April somewhere I started around this. हमारा फर्स्ट इनिशियल बैच था अप्रैल का, मैं वहाँ थी, और अब मैं ऑलमोस्ट 22 अप्रैल को कमीशनड हो जाऊँगी. सो इट इज़ मेकिंग मी फील सो गुड दैट इट्स ऑल लाइक इफ़ यू आर डेडिकेटेड एंड इफ़ यू नो दैट योर गोल इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, बट आपको पहुँचना कैसे है वो लड़ाई आपको खुद लड़नी है. इफ़ यू नो दैट आप में इतने चेंजेस ज़रूरी हैं, आपको इतनी लगन के साथ करना पड़ेगा, तो बहुत आसानी से हो जाएगा. गाइज, इफ़ आई कैन डू इट, anyone who is watching this video can do it. बस भरोसा नहीं छोड़ना खुद पे से. Your self belief is your weapon, is your strongest strength. बहुत लोग बोलेंगे बहुत कुछ, बट अपने पे से भरोसा नहीं छोड़ना. That is important. And yes, that was it. So बहुत ही अमेजिंग जर्नी है शालू तुम्हारी, एंड आई जस्ट विश ऑल द लक टू यू नाउ. आई वांट टू, मतलब अब तुम्हारे लिए बस यही दुआ है कि और ऊंचा बस. कुछ सालों बाद देखिए शालू ने ये कर दिया, अच्छा दिस शी इज द फर्स्ट वुमन, अच्छा ये हो गया, यू नो. दिस इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर फ्रॉम शालू, एंड आई नो इट विल बी देयर. सो जैसे शालू ने बोला कि अपने पेरेंट्स के बारे में, same, I think me and Bhavna both, we are blessed to have great parents actually. And like जैसे ये बात करती थी अपने पापा के बारे में इंटरव्यू में, मैं ऐसे ही बात करती थी. जब मेरे पापा के बारे में पूछा जाता था, I was like, अब बेटा तू सुन. And this is what I used to always do, because and that matters. क्यों उसका रिलेशन है? Because when you go into forces, you will be under the commanding officer. So they want to correlate कि if she or he respects their father, the same will be reflected there when they are in the organization towards their seniors. That is how they are matching. This is just one example. Everybody, I'm telling you, how are they checking your officer-like qualities or your, qualities to perform well in the forces, and why should they take you? So Shalu, I have one more question for you now. Like the toughest part, you will tell me about the interview you faced, and what were the questions you really want these candidates to focus on? मैम,
very important question you have asked. Talking about interview in my first attempt, the interview was very smooth because freshers से नहीं पूछा जाता ज़्यादा बाहर का. They just expect you to know about yourself. PIQ based CIQ, that's it. And it's there like center by center also. The things are very different. In Bhopal, it's still the same. They will ask you the fixed CIQs. Very rare chance that they will be asking you something else. Talking about my second attempt, as it was specifically for IT. So I was very clear because I so wanted in my Bhopal attempt to ask like them to ask me the tech questions, but they didn't ask me anything. In my second attempt, I so wanted them to ask me my tech questions. They haven't asked me my tech questions, with which they grilled me so much. Why am I saying like grilled me is just because they haven't asked me so much of Navy questions. So much of Navy questions which I was not aware about. And he was looking into my eyes and asking me the question. So he was the president of the board, Vishakhapatnam, NSB. So I was looking into in his eyes and I was like, sorry sir, I don't know. Sorry sir, I have not studied it. Sorry sir, I can't recall it. Sorry sir, I have not studied it. Literally back to back 15 questions he asked me. And I was not able to answer it. But then he came on to my CIQ, PIQ. And he came on to my IT. I was able to answer all the IT questions very easily. And then at that moment of time, I was like, फोन करके बाहर आके मम्मी को बोला, मम्मी मैं कॉन्फ्रेंस आउट होने वाली हूँ, ट्रेन की टिकट करा देना, फ्लाइट की मत कराना, मैं आ जाऊंगी ट्रेन से, टेंशन मत लेना, आई विल बी फाइन बट आई विल कम बाय ट्रेन, सो डोंट वरी, सेम डे की फ्लाइट बहुत महंगी पड़ जाएगी. लिटरली आई सेड दिस. एंड व्हेन आई गॉट द रिजल्ट्स, आई केम टू नो कि वो तो सिर्फ डराने का तरीका था. क्यों? बिकॉज मैम इन द इंटरव्यू दे asked me just the same way he asked me, like the way I am saying, कि he was laughing and saying, शालू तुमको ये तो आना चाहिए था. And I was like, ये तो फ्रेंडली हो रहे हो सर आप, मुझे नहीं आता, मैं तुक्का भी नहीं मारूंगी. तो मैंने कहा सॉरी सर, आई डोंट नो. He was like, why do you don't know? मैंने कहा सर, I have just studied the basics. And these questions were not covered in the part that I have studied, and these were nowhere available on the website. So my major reference was your Indian Navy website. I have studied about the website. Like I have studied everything from the website, and these things were not mentioned, so I don't know much. So he was like, okay. Same thing happened. He cross-checked it. This is what I believe, that they literally cross-check everything. So in the conference, they asked me, Shalu, just rate yourself and tell us that how your performance was. मैंने कहा sir, I was very happy with my psych test because this time my psych was very beautiful. I was very happy. With which I guess I did the highest number of SRTs. So I was even happy with that I did 55 SRTs. I was very happy कि बहुत कर लिया. And then I came on to my interview. I was like, sir, I was not that happy with my interview. So the president gave me a very beautiful smile then, because he knew that what I did in the interview. The deputy president asked me, oh, why Shalu, what you did? मैंने कहा, sir, I was able to answer the tech questions, but I was not able to answer much about Navy. So he asked me, why Shalu? You look like so studious student. You have such great scores. Then why have you not prepared well? मैंने कहा, sir, I had prepared. I just went through Indian Navy website and I studied everything that whatsoever was there on the website. But the questions that were asked to me were beyond the content that was available on that website. So he was like, okay, Shalu, so it seems like you were not happy. मैंने कहा, sir, I was not that happy with the Navy questions because I have studied the basics. But when it was on tech, I was able to answer my tech questions. So I was happy with that portion. So he was like, okay. And then your GTO, मैंने कहा, sir, I was very happy with my GTO. And suddenly my eyes went onto my GTO and he was giving me a great smile. Like for the first time in the conference, I was able to see almost 25 to 28 officers who was present there. And I literally, my nazar went from my left to my right and I just saw everyone. And everyone was giving me such a pretty smile. So I was like, चलो कुछ तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो कोई नहीं, कुछ और बेहतर लिखा होगा. So I was like that, and at that moment of time I understood that ठीक है, क्रॉस चेक भी कर लिया इन्होंने, पता भी चल गया कि सेम आंसर ही है मेरा. फिर मैं बाहर आई, रिजल्ट आया, and I was not expecting. Why I'll say this, that I was not expecting, because the other girl who got recommended was also from my own GTO group, and I was like, एक ग्रुप से एक ही होती है, मैं तो बाहर हूँ, मैं नहीं जाने वाली. But I was like, चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ.
and here it is, here I am and it feels good. इंटरव्यू में वही है, जितना आपको ग्रिल कर रहे हैं मतलब आपका कॉन्फिडेंस हिलाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं इस माइंडसेट के साथ गई थी कि जैसा जो चेहरा मैं लेकर जा रही हूँ वही सेम एक्सप्रेशन और चेहरा लेकर मैं वापस आऊंगी. भले ही दिल में इट वॉज लाइक कि शालू गोलमाल हो चुका है, यू माइट नॉट एंड अप गेटिंग रिकमेंडेड, बट एट द एंड इट वॉज लाइक कि एग्जामिनर थोड़ी हैं जो उठ के डांट देंगे, उन्हें तो उनका प्रोसेस करना है और हमें हमारे आंसर्स देने हैं. इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते वो, और हम भी कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे, हम वहाँ से भाग नहीं सकते. सो दैट वॉज इट. आई वॉज लाइक चलो देते हैं, एंड देन इट हैपेंड एंड आई वॉज लाइक चलो जय माता दी, जो होगा होगा, आगे देख लेंगे. And then I shared this experience with one of my friend who is already commissioned. So he was like, Shalu, you are getting recommended for sure. मैंने कहा how come? So he was like, see, IT entry है, IT के questions तूने दे दिया. ग्रिल वो कर रहा था क्योंकि तू कॉन्फिडेंस में थी, वो सिर्फ तेरा कॉन्फिडेंस हिला रहा था. इसके अलावा अगर तूने कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे नहीं किया है और जैसा तू बता रही है तूने वैसा किया है, तो आई बेट तू रेकमेंड होने वाली है. एंड देन आई गॉट रेकमेंडेड एंड आई वाज लाइक, आई हैव सच ह्यूज फ्रेंड्स, सच ग्रेट अमेजिंग फ्रेंड्स, and they are the people who are always motivating me. And commission friends are literally the actual motivators. They motivate us like anything कि तू तो कर लेगी, तू कहाँ जा रही है, you will do it. So yes, that was how the journey was. The interview मज़ेदार था. Interviewing officer was a starer. He was trying to make someone uncomfortable. कोई fresher जाएगा तो uncomfortable होगा, बट वही है, रिपीटर होने के बाद ये पता होता है कि क्या ही हो सकता है. ज़्यादा से ज़्यादा डरना नहीं है और आंसर करना है, अपने थॉट प्रोसेस को जो भी है उनके सामने रखना है. एंड इन दैट इंटरव्यू ही चेक्ड एवरीथिंग. ही आस्क्ड मी माई स्क्रीनिंग के स्टोरी, ही आस्क्ड मी हाउ मेनी SRTs I did because it was just after the psych test. He asked me everything that I have done throughout these 2 days. And he was like, okay, he was writing a lot. Even my hand movements were being noticed so well, with which pressure बना रहा था. मेरे सर के ऊपर एक ना वॉल क्लॉक थी, वो बार बार उसको देख रहे थे, फिर बार बार मुझे देख रहे थे. और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था. प्यारा क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ एक बहुत रिमार्केबल क्वेश्चन ही आस्क्ड मी कि शालू टेल मी दी सैडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, 2 सैडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ. क्योंकि उन्हें पता था पहला मैं मेरिट आउट बताऊंगी. तो ही वॉज लाइक, अच्छा ठीक है, पहला मेरिट आउट हो गया, दूसरा बताओ. एंड आई वॉज लाइक, सर कैन आई टेक 2 minutes टू थिंक अबाउट द सेम. तो ही वॉज लाइक, ओके थिंक. सो वन थिंग आई रिमेंबर, अगर हम सोच रहे हैं और अगर हम आसमान में देखेंगे या दीवार को देखेंगे तो लगेगा कि हम डर रहे हैं या अंडर कॉन्फिडेंट होके सोच रहे हैं. एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वॉज लुकिंग इन टू हिज आईज एंड आई वॉज थिंकिंग. मैं लिटरली उनकी आंखों में आंखें डालकर आई वॉज थिंकिंग, और मैं ऐसे थी, सर मैं डर तो नहीं रही लेकिन मैं सोच रही हूँ. और जैसे ही मैंने सोचा मैंने उन्हें बताया, एंड ही वाज लाइक, ओके दिस डजंट सीम्स टू बी अ सैड मोमेंट दो, एज यू से आई बिलीव यू. मैंने कहा यस सर. सो दैट वाज इट. Okay. So that's amazing, Shalu. And bas ab all the best for your new journey, new life, Shalu. New life, literally. So I wish you all the luck. Me and Bhavna are all there for you. कभी कोई जरूरत हो हमें कॉल करना यार अकेडमी से, और POP पे पक्का बुलाना. बिल्कुल So मैम. that's what I'm hoping for, Shalu, now. And it was great having you, and thank you for this such a lovely interview, and good luck. I love you. Thank you ma'am, thank you so much for such like being the greatest of sisters that I can have. SSB Mantra has not just given me the co-practicers or something, but they have literally gave me a huge family. Like a lot of us are going to OTA, INA, and it feels like we all are brothers and sisters, or the siblings together, with which us having 2 elder sisters like you two are truly an inspiration for all of us. And we love you so much. Like literally we are blessed to have you. शायद मैं ज़्यादा लगी है बोलते हुए, लेकिन truly the experience was amazing. डांटना आपका मम्मी की तरह था, समझाना पापा की तरह, और प्यार करना तो बड़ी बहन की तरह. So this was it, because I still remember when I got recommended, you were crying, Bhavna was crying, I was crying. So it was a beautiful moment altogether. So thank you for being amazing sisters. Thank you, Shalu. Thank you. And Jai Mata Di. Good luck. Thank you so much.